Okay, so good evening everyone. Today we will be discussing the questions of the rational numbers that we have already finished the topic, and now today we will discuss the questions that are being given in your textbook. So if you have solved, if you have not solved, not a big deal. Let us try to solve the questions here. So you guys have to solve the questions and you guys have to give me the answer. So let us get started. This is the first question in front of you, and the time for this question is how much? How much? 30 seconds. Chalo, let us get started. If I have to calculate the other number, what I do is I simply do 5 minus 3, which is equal to 2. I simply do 5 minus 3, which is equal to 2. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा? अब यहाँ पे क्या करना होगा कि एक सम तो मेरे पास -8/9 है और वन ऑफ द नंबर इज -5/7. तो सम में से अगर मैं उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डेट विल हैपन, I will get my result. So -8/9 minus of -5/7. Now if you want you can use the properties also, कि my subtraction is just the addition of the additive inverse, या आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि माइनस माइनस प्लस हो गया. सो दिस इज नथिंग बट -8/9 प्लस 5/7. -8/9 प्लस 5/7. अब क्या करेंगे अपन? एलसीएम ले लिया तो 63 हो गया. 8 7 जा 56. सो दिस इज -56. क्यों 8 7 जा किया? यहाँ पे 9 है, इसको 63 बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 8 7 जा. यहाँ पे 7 है, इसको 63 बनाने के लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस प्लस 45. So finally I am getting -11 upon 63. So those who are getting the answer as -11 upon 63, that is absolutely correct या incorrect? That answer is Correct, absolutely sir. correct. Correct, So sir. those who are getting the answer as -11/63, this answer is absolutely correct. What we did is we used the fundamental that is if the sum of two numbers is 5 and if one of the number is 3 then the other number is 2. कैसे किया? 5 में से 3 को घटा दिया. यहाँ पे भी वही काम किया. यहाँ पे हमने -8/9 में से 5/7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया and I got the result. Next question. What should be subtracted from -4/9 to get 5/12? Your time starts now. Let's solve this question. The question is saying what should be subtracted from -4/9 so that the result is 5/12. -4/9 में से -4/9 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं such that the result is 5/12. This question is similar to this question कि how much should I subtract from 5? 5 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं से हाउ मच, मतलब मान लिया इसको x, so that the result is say 2. ठीक है? Although we have not learned linear equation in one variable, but we can do something because we have learnt about, थोड़ा थोड़ा हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो 5 माइनस एक्स करूं तो मेरे पास रिजल्ट 2 आना चाहिए. तो ये काम हम कैसे करेंगे? इस x को हम, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सो इट इज लाइक दिस. इस x को मैं इक्वेशन के राइट साइड में ट्रांसपोज करूंगा और इस 2 को मैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा. यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव है तो यहाँ के ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये x चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये x यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा. तो बेसिकली this x will be equal to 5 minus 2 which is equal to 3. हमने किया क्या? यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स को, बड़े वाले नंबर को, जो जो जिस नंबर से मुझे सब्ट्रैक्ट करना था और जो रिजल्ट था, उन दोनों नंबर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सब्ट्रैक्टेड -4/9 minus 5/12. Now the LCM of this is 36.
The LCM is 36. Now if I want to make it 36, so I have to multiply it by 4. So this will be minus 16 by 36. If I want to make it 36, I have to multiply it by 3. So this will be minus 15 by 36. Finally आंसर कितना आया? Minus 31 upon 36. ठीक है सर? This is the answer of the question, and the answer of the question is minus 31 upon 36. आगे बढ़े? चलो, next question. The product of two rational numbers is minus 25 by 49. If one of the number is this, I have to find the other number. चलिए, time starts now. देखो, अगर क्वेश्चन में ये बोलता है, सी रैशनल नंबर्स है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है एक बार को समझने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम हर क्वेश्चन को रियल लाइफ एग्जांपल से डील करके करेंगे ताकि हमें ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। हम इसको ऐसे करेंगे, दो नंबर्स हैं, से मान लो 2 और 3, 2 और एक कोई नंबर है ब्लॉक जो मुझे नहीं पता, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है 6। अगर मुझे पता लगाना है कि ये ब्लॉक कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट 3 मिल जाएगा। अब डिवीजन, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या करना है, इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई वांट टू I basically want the result of minus 25 by 49 divided by 5 by 8। इसका रिजल्ट मुझे पता करना है। हम लोगों ने पिछले टर्न पे क्या पढ़ा था सर, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 5 by 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 8 by 5। So what I will do is I will multiply it by 8 by 5. So this will be minus 25 by 49 multiplied by 8 by 5. So finally I am getting 5 से 5 cancel हो गया, so finally it will be minus 40 upon 49. Finally it will be minus 40 upon 49. This is what is the answer you guys are also getting. यही आंसर आ रहा है या कुछ, यही आंसर आ रहा था? yes, sir. चलो ठीक है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, बहुत खुशी की बात है ये तो। चलो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन करो, डिवाइड द सम ऑफ minus 7 by 8 and 4 by 5 by their product। -7 by 8 और 4 by 5 को पहले इनका सम निकालो और फिर जो प्रोडक्ट आया उससे डिवाइड करो। आई हैव टू डू -7 by 6 plus 4 by 5। नाउ आई नो दैट द LCM of 6 and 5 is 30। LCM of 6 and 5 is 30। अब इस 6 को अगर मुझे 30 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी -35 प्लस, अगर इस 5 को मुझे 30 बनाना है तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो दिस विल बी -20 प्लस 24। सो फाइनली आई एम गेटिंग -11 अपॉन 30। ठीक है, अब बाय देयर प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो -7 by 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 by 5 मैं करूं तो क्या होगा, ये सबसे पहले तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज -14 by 15। बेसिकली दिस इज -14 by 15। अब मुझे क्या करना है, दिस इज 1, दिस इज 2, मेरे को 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है, 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। और मुझे पता है डिवीजन इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो दिस विल बी -11 by 30 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन -14। अब सबसे पहले तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, ये प्लस साइन हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। तो बेसिकली आई एम हैविंग 11 अपॉन 28 एज माई आंसर। क्या आंसर मिला, 11 अपॉन 28। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा था, से यस और नो? Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं सर। Insert 5 rational numbers between the two given rational numbers। 5 rational numbers निकालने हैं, तो जल्दी से निकाल के बता दो।
5 rational numbers निकालना. See, we will not wait for this question. We have discussed this question a lot. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 rational numbers निकालना है, तो 5 plus 1 क्या होता है, 6 होता है. तो मेरे जो दोनों numbers दिए हुए हैं, इन numbers को numerator और denominator में मैं सबसे पहले 6 से multiply करूंगा. या मैं एक काम और कर सकता हूँ. सब एक, हाँ बोलिए. Sir, we can means sir, Sir, we we can. can multiply by the multiple of 10, so we can directly multiply numerator denominator by 10, so it will be Yes, more yes, easy. yes, 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 you can do. You can do. You can multiply the numerator and denominator by 10. You can multiply numerator and denominator by any number greater than or equal to 6. By any number greater than or equal to 6, you can multiply it. But first thing that you should remember here is you have to make the LCM as same. तो यहाँ पे जैसे -5/6 था और यहाँ पे 7/8 है, तो first thing what you should do is make the LCM same. तो जब when you will make the LCM same, so what you will have, 6 और 8 का जो एलसीएम होता है बेटा वो 24 होता है. तो व्हाट यू शुड वांट इज यू शुड मेक द एलसीएम एज 24. तो 24 एलसीएम करने के लिए 5/6 को इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आई एम गेटिंग -20/24. और यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आई एम गेटिंग 21/24. नाउ आई कैन वेरी इजिली टेल 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स. कौन कौन से हो गए? लो भाई, Sir, 1/24. right. एक मिनट बेटा, एक मिनट. 1/24, 2/24, 5/24. यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी. इफ आई वांट आई कैन स्किप दैट स्टेप आल्सो. हाँ जी बताइए. आप कोई कुछ बोल रहा था? कोई कुछ बोल रहा था, बोलो. somebody was saying something, please tell. So what I was saying that even if you want, you can't multiply. There is no need to multiply. There is no need to multiply the numbers by 6, 7, 8, 9, 10, whatever. But the thing is, if you are making the LCM same, देखो multiply करने की जरूरत तब पड़ती है अगर मैं बोलूं कि insert 10 rational numbers between 1/3 and 1/2. यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है. सो बेसिकली दिस इज 2/6 एंड दिस इज 3/6. अब 2/6 और 3/6 के बीच में हम कैसे नंबर्स बताएंगे? सो मेरे लिए नंबर बताना बहुत आसान है, आपके लिए नंबर बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज यू गाइज आर स्टिल छोटे छोटे किड्स. So it's not possible for you to tell these numbers, right? But if you ask me, I can very easily tell that one number will be 21/60, another number will be 22/60, another number will be 23/60. But for you, it will be little bit difficult. It will be little bit difficult. That is why I said that if you want to insert 5 rational numbers, multiply it by 6. If you want to insert 5 rational numbers, multiply it by any number greater than or equal to 6, and so on. ठीक है. So this is the thing. But here this was a special case जहाँ पे हम आराम से नंबर्स को हटा सकते हैं. ठीक है. देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई इट बिकॉज द रेंज इज वेरी लार्ज, राइट? और अच्छा हाँ, एक चीज और, एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जैसे वो क्या मिस्टेक करेंगे, -20/24 और 21/24 के बीच में नंबर लिखना है, तो व्हाट दे विल डू, सर वन नंबर विल बी -21/24, another number will be -22/24. No, this is absolutely wrong. This is absolute blunder. Why? बिकॉज जैसे अगर हम निगेटिव नंबर लाइन की बात करते हैं तो -21/24 इज लेस देन 20 -20/24. यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये जो इस सिचुएशन को अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो एक नंबर -5/6 यहाँ पे होगा, एक नंबर 0 यहाँ पे होगा और एक नंबर 7/8 यहाँ पे होगा. और जो -21/24 था, जो मैंने आपको बताया था कि लोग खुश होते हुए -21/24 बोल देंगे, that will lie here. You are not supposed to tell numbers which are lying in this zone, or you are not supposed to tell numbers which are lying in this zone.
Rather than, my dear friends, you are supposed to tell numbers which are lying in this zone. You are supposed to tell numbers which are lying in this zone. सर हाँ बोलिए. सर सो उसका जो सिंप्लीफाई किया हमने हम्म. तो वो तो एक सिंप्लीफाई है सो हम्म. हम हमें -5/6 और 7/8 के बीच का नंबर ढूंढना है ऐसे बोल रहे हैं ना हम्म. सिर्फ उसका एलसीएम निकला है सो हमें द ओरिजिनल नंबर के बीच में ही जो मीन्स नंबर लाइन पे है उसको ही फाइंड करना है हाँ, ओरिजिनल नंबर के बीच में तो फाइंड करना है, तो ओरिजिनल नंबर के बीच में तो फाइंड किया है. मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछ रहे हो. सर आई वाज आस्किंग दैट इट इज आई टोल्ड दैट मेथड इज आल्सो करेक्ट और नॉट व्हाट, दिस इज करेक्ट ओनली. भाई पहले नंबर का, भाई दो नंबर्स को कंपेयर हम तभी करते हैं बेटा. दिस इज व्हाट वी रेड आल्सो. वी कंपेयर टू नंबर्स इफ एंड ओनली इफ देयर एलसीएम इज सेम. तो सबसे पहले -5/6 और 7/8 के एलसीएम को तो आपको सेम करना पड़ेगा. इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा. 6 और 8 का डिनोमिनेटर जो होता है, 6 और 8 का एलसीएम जो होता है, डेट इज 24. नाउ यू हैव टू मेक दिस 6 एज 24. तो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई बोथ -5/6/4. So it will become -20/24. This is equal to -20/24, and this is equivalent to 21/24. ये नंबर, ये जो -5/6 है, दिस इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू -20/24. और ये जो नंबर 7/8 है, दिस इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू 21/24. दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर हैं. अब ये दोनों नंबर्स जब बराबर हैं तो इनके बीच के नंबर्स को लिख दो. आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट, राइट? समझ में आया बेटा? बताइए. सर आई वाज टेलिंग द सेम ठीक है, ठीक है, चलो. नेक्स्ट, फाइंड टू रैशनल नंबर्स whose absolute value is 1/5. दो नंबर्स बताओ जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड 1/5. वो हम लोगों ने पढ़ा था. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू वाज गिवन इन दिस मॉड साइन. तो -x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो तो x होती है, और x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो x ही होती है. और ये दिस टू पैरेलल लाइंस और उनके बीच में लिखे हुए नंबर को हम बोलते हैं मॉड x. मॉड x बोलते हैं हम उनको. ठीक है, चलिए अब बताइए. व्हाट विल बी, हाउ, व्हाट आर द टू नंबर्स जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1/5 है? सर -1/5 and 1/5. एग्जैक्टली करेक्ट. -1/5 और 1/5 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1/5 होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. All right, now the last thing, let us discuss whatever we have done till now. Or what I will do is I will start from the initial slide. So let us do a quick recapitulation of what we have discussed in this chapter till now. आज तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है, कैसे कैसे डिस्कस किया है, क्यों डिस्कस किया है, उन सारी चीजों को चलो डिस्कस कर लेते हैं. So the chapter was rational numbers, in which we studied about different type of numbers. We started with the counting numbers. हमने counting numbers से start किया था, 1 2 3 4 इस तरीके से हमने count किया था. Then we went on moving, और फिर हमने थोड़े दिनों के बाद अपन ने whole numbers को find किया. Then we found out the integers. Then we found out the rational numbers, and the journey is
स्टिल कंटिन्यूइंग। हम लोगों ने यहाँ से चालू किया था, नेचुरल नंबर से हम लोगों ने चालू किया था, और आज हमारी जर्नी यहाँ पे है। इसके आगे हम जो चीजें पढ़ेंगे वो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, 8th स्टैंडर्ड में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक था इवन नंबर, एक था ऑड नंबर। उसके अलावा हमने इन नंबर्स को प्राइम नंबर और ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में भी डिफाइन किया था। ठीक है, इंटीजर रैशनल नंबर्स को हमने दो टाइप से डिवाइड किया था, एक होते हैं इंटीजर्स, दूसरे होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आर ए टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स ओनली। पिछली क्लास में कुछ लोग थे जो लोग पढ़ नहीं, इसमें जिन लोगों ने रैशनल नंबर्स वाली क्लास नहीं अटेंड की थी उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ रैशनल नंबर क्या होता है सर। A rational number that can be expressed in the form of p by q, where q is a non-zero integer. q is a non-zero integer मतलब q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस जीरो नहीं होनी चाहिए, और जो मेरा p है वो कोई भी इंटीजर होना चाहिए। तो रैशनल नंबर क्या होता है सर, एक बार फिर से समझ लेते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे दिस p इज कॉल्ड एज द न्यूमरेटर, जो ऊपर लिखा हुआ उसे न्यूमरेटर बोल दो, जो नीचे लिखा हो उसे डिनोमिनेटर बोल दो। तो वो नंबर जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो गया तो इस नंबर का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्त। तो यहाँ पे इसीलिए हम ऐसे नंबर्स को, जो नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा रहता है, उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस रैशनल नंबर में दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक होता है निगेटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है सर? पॉजिटिव रैशनल नंबर वो नंबर होता है जहां पे p बाई क्यू पॉजिटिव हो। p बाई क्यू पॉजिटिव मतलब या तो p और q दोनों पॉजिटिव हो, या तो p और q दोनों निगेटिव हो। क्योंकि हम ये जानते हैं, जैसे ये नंबर है -7/12, तो इसमें माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपके दोस्त ने जो एक एग्जांपल दिया था, कुछ अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो -17/-30 था वो नंबर। ठीक है, -17/-30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस नंबर इज 17/30। सो बेसिकली दिस नंबर इज 17/30। तो इस टाइप से तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बेटा वो रैशनल नंबर होते हैं जिसमें या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो पॉजिटिव हो, या दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो। अब आता है निगेटिव रैशनल नंबर। निगेटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जिसमें p और q अपोजिट साइन के हो। अपोजिट साइन का मतलब या तो p पॉजिटिव हो q नेगेटिव हो, या तो q पॉजिटिव हो p नेगेटिव हो। जैसे कि -3/7 हो गया, -5/5/-9 हो गया, -15/26 हो गया। दीज ऑल आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव रैशनल नंबर्स। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आई एम हैविंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन रैशनल नंबर। तो अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर की बात करूं तो बेसिकली आई एम हैविंग टू टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है जहां पे रिमाइंडर लास्ट में जीरो आ जाता है, एक वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है जहां पे रिमाइंडर लास्ट में जीरो नहीं आता है। किस केस में रिमाइंडर जीरो नहीं आता है सर? अगर मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, if I am dividing 1 by 3, then I will not get remainder as 0, rather my remainder will be 1। मेरा जो रिमाइंडर है वो हमेशा 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 1 1 1 1 1 आता ही रहेगा, मेरा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। 1 को जब मैं 7 से डिवाइड जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 142857, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 142857 142857 142857, it will keep on repeating, it will keep on repeating। हमेशा लास्ट में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता ही रहेगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं, अगर मैं 3 को 20 से डिवाइड करूं, अगर मैं 6 को
अगर मैं 6 को 60 से डिवाइड करूं, अगर मैं 6 को 1000 से डिवाइड करूं, अगर मैं 6 को 125 से डिवाइड करूं, तो व्हाट आई विल फाइंड इज, आई विल फाइंड दैट द रिमाइंडर विल बी जीरो एट आफ्टर सम प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद आएगा दैट आई डोंट नो। हो सकता है 2 प्लेसेस के बाद आ जाए, 3 प्लेसेस के बाद आ जाए, 5 प्लेसेस के बाद आ जाए, लेकिन ये पक्का है कि जीरो तो आएगा। ये पक्का है कि सर जीरो तो आएगा ही। अब सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बिना देखे, बिना मल्टीप्लाई किए बता सके? हाँ, तरीका है। कैसा तरीका? जो भी आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है, उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के पास जाओ, उस डिनोमिनेटर से पूछो कि भाई तेरा प्राइम फैक्टर क्या है। वो बताएगा अपना प्राइम फैक्टर। जैसे मान लो मैं 20 के पास गया, मैंने 20 से पूछा भाई तेरा प्राइम फैक्टर क्या है, 20 बोलेगा कि यू वांट माय प्राइम फैक्टर, दीज आर माय प्राइम फैक्टर्स, 2 raised to the power 2 multiplied by 5. So what do you mean by prime factors? Prime factors means prime factors, इस नंबर को प्राइम प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे देखो 20 को मैं 10 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, बट 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। मुझे 20 को डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। सो 2 इंटू 5 या 4 इंटू 5 भी 20 होता है, लेकिन अगेन दिस 4 इज ए कंपोजिट नंबर, तो 4 को मुझे प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली एक्सप्रेसिंग एनी नंबर in terms of prime, in terms of multiple of prime numbers is called as prime factorization. So 20 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 2 raised to the power 5। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, आई एम सॉरी आई सेड 2 raised to the power 5। अब ऐसे नंबर जिनका प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 और 5 हो, अगर कुछ है तो वो कैंसिल हो जाए। ऐसे नंबर जिनका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हो, ऐसे नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। तो दिस वाज द केस ऑफ, so this is what we did. Next what happened, next we did the lowest form of a rational number। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि आपके फ्रेंड ने बोला था कि सर हम इसको he asked something while we were discussing about this representation। okay, तो एक है 1/2, एक है 2/4, so this 2/4 is nothing but 1/2 only। this 2/4 is nothing but 1/2 only। कैसे सर? मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। और ये बात तो हम लोग 7th स्टैंडर्ड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और या डिवाइड कर सकते हैं। ये बात हम लोग पढ़े हैं भाई। 1/2, ध्यान से देखो, 1/2 इज ए रैशनल नंबर, दिस इज नथिंग बट ए रेशियो ओनली ना। रेशियो में क्या होता था? दिस इज नथिंग बट ए रेशियो ओनली। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस आल्सो। ठीक है, तो अब किसी भी नंबर को उसके लोएस्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उसके एचसीएफ से डिवाइड कर दो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ऐसा मत करना कि सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को छोड़ दिया। क्यों सर छोड़ दिया? बस ऐसे ही भूल गए सर? नहीं, ऐसी गलती मत करना प्लीज। अगर न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी करना। अगर न्यूमरेटर को नहीं किया है तो डिनोमिनेटर को भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मत करो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिवाइड करना है तो दोनों को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाज देयर सम क्वेश्चंस। फिर हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। इसमें क्या करना था, जितना भी डिनोमिनेटर दिया हो, पहले जो भी न्यूमरेटर दिया हो हमारे नंबर लाइन में, पहले तो एक पॉइंट ओ मान लो और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जितना भी हमें न्यूमरेटर दिया हुआ उसको मार्क कर लो। जैसे 7 दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर ले लो, वहां पे 7 मार्क कर दो। उसके बाद जो डिस्टेंस है ओ ए विच इज इक्वल टू 7, उसको डिनोमिनेटर जितना उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर जितना उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब जैसे मान लो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया 7 को अगर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 7, तो 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 7/3। if 3 parts is equal to 7, so 1 part is equal to 7/3। यहां से यहां तक 7 था, यहां से यहां तक पूरा 7 था। इसको 7 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो सर ये जो होगा ये 7/3 तो होगा। now why this is -7/3? because I am talking about
numbers which are less than 0. नंबर लाइन की एक और खासियत बात होती है, ये नंबर लाइन हो गया, इस नंबर लाइन के सेंटर पे हम जीरो को मानते हैं, सेंटर के राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करते हैं, सेंटर के लेफ्ट साइड में हम निगेटिव नंबर्स को डिनोट करते हैं। जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाओगे, जब आप लोग 9th स्टैंडर्ड में आओगे, तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि अभी तो हमने ये नंबर लाइन सिर्फ एक डायरेक्शन में पढ़ा था, ये नंबर लाइन एक और डायरेक्शन में होती है। इस तरीके से सेंटर के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाले पोर्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाले पोर्शन को हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी नंबर लाइन जो है, हमारा जो प्लेन होता है वो 4 खानों में डिवाइडेड होता है। अभी फिलहाल चूंकि हम छोटे हैं तो अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि हमारा जो प्लेन है वो 2 खानों में डिवाइडेड है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर में बस इतना याद रखो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव x वेयर x इज एनी नंबर is x and absolute value of x की एब्सोल्यूट वैल्यू तो x होती ही है, निगेटिव x की भी जो वैल्यू होती है वो भी x होती है। इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आज नहीं, 9th में या 10th में। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं सर? दो रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट उन दोनों नंबर्स का सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं है ये चेक कर लो, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम कर दो। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल -3/5 और से -3/5 और से -11/3, इन दोनों नंबर्स को मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लूंगा 15। अब इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी -9/15, और इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी -55/15। अब हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि निगेटिव नंबर्स में जो नंबर छोटा है वो होता है, वो बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9/15 इज बिगर। अगर मान लो ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते, दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते, तो उस केस में क्या होता है सर? 55/15 और 11/3 इज बिगर। अच्छा, एक बात और याद रखना, एग्जाम में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आएंगे या जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द बिगेस्ट नंबर और द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दिस। तो आपको ये नहीं लिखना है कि 9/5 इज द स्मॉलेस्ट, नो, 9/15 is the smallest. This you are not supposed to write. You are supposed to write, sir, कि 3/5 will be the smallest. आपके एग्जामिनर को नहीं पता, कि उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आप इसको 9/15 करो या 9/500 करो, जो करना है करो। ही वॉन्ट्स द आंसर इन टर्म्स ऑफ द गिवन नंबर्स ओनली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आता है, नॉर्मली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस सही करते हैं लेकिन बाद में ढूंढते रहते हैं, सर मेरा तो 9/15 आया था और 55/15 आया था, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। फिर उन्हें क्या होता है, उन्हें डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसे डाउट नहीं लाने हैं मन में। ठीक है, देन वी हैड द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिर अपन ने ओके, then we discussed lot of properties। एडिशन पढ़ा था, फिर एडिशन की कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एडिशन में दो केसेस थे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करो। फिर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था। देन वी स्टडीड कम्यूटेटिव लॉ, देन आई स्टडीड एसोसिएटिव लॉ, देन आई स्टडीड additive identity। additive identity is 0। this question is directly asked, additive identity of a rational number is what? additive inverse of a rational number is what? ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 3/5। तो अगर आपको एडिटिव आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो आप नहीं मार्क कर पाओगे। और ये क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो लुक एंड मार्क होते हैं, मार्क एंड गो, मार्क टेक मार्क्स एंड गो। यहाँ पे ज्यादा है, 5 सेकंड बहुत बड़ी बात है, जितना आपको बबल भरने में टाइम लगता है उतना ही लगना चाहिए इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इफ आई talk about properties of addition, just a minute, I'm getting a call, huh? Just a minute। subtraction हम लोगों ने पढ़ा था, then we did some properties of subtraction also, then we did some multiplications also, then we did some division, then we did some division properties also। division is nothing but
उस नंबर के उस नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, that is called as the division. We study different type of laws also. So this is how the chapter of this is how we completed this chapter of rational numbers. Now your exercise will start. Your exercise will start, and your exercise is you have to solve each and every question given in your textbook. आपको अपने टेक्स्ट बुक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. That is a must for you to solve each and every question of your textbook, right? So first of all, what you will do is you will start with exercise number 1, then you will solve exercise number 3, and after solving exercise number 3, what you will do is you will solve exercise number 2. पहले सबसे पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3, एंड देन यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2. ठीक है सर? So this is how the things will proceed. If you guys have any doubt, please ask me. I'm writing here exercise 1 followed by exercise 2 3, then followed by exercise number 2. Okay, if you guys have any doubt, please ask me. कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. हेलो? नो सर. नो डाउट. ठीक है, चलो फिर व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप द क्लास टुडे, सॉल्व द क्वेश्चंस एंड कम विथ लॉट ऑफ डाउट्स, बॉम्बार्ड मी विथ डाउट्स. क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोरोना विस्फोट हो रहा है वैसे आप लोग डाउट्स का विस्फोट करें अगली क्लास में. यू शुड नॉट गिव मी अ सिंगल मिनट टू रिलैक्स. सो दैट शुड बी योर एम. ऐसा कब होगा, जैसा आप लोग, अगर आप लोग क्वेश्चंस करके आओगे तब. नहीं क्वेश्चंस करके आओगे बेटा तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कुछ भी समझ में नहीं आने वाला. एंड रिमेंबर वन थिंग, माय मेथड ऑफ सॉल्विंग डाउट इज लिटिल बिट डिफरेंट. आई विल आस्क यू how you have solved the question, then only I will help you out. I will help you in solving the question, because there is no point in giving the solution. सीधे सीधे सॉल्यूशन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है. सो आई विल आस्क यू हाउ यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन. यू शुड ट्राई द क्वेश्चन. सॉल्व हुआ नहीं हुआ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, but I should know the approach, right? So this is what we will be